Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining the chapter about light, yani roshni. In this chapter you will learn need to measure time, measurement of time, slow and fast motion, distance and time graphs जो होते हैं. Let's begin. Give two examples of each. Transport object, data store और हमारा info cubes. Translucent object, वैक्स पेपर और टिश्यू पेपर, कुछ भी हो सकते हैं, काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको लिखवा रही हूँ वही है. ट्रांसलूसेंट यानी जिनसे आप थोड़ा बहुत आर पार देख सकते हैं. ओपेक ऑब्जेक्ट जिनसे आप बिल्कुल आर पार नहीं देख सकते, जैसे हमारा वुड और मेटल. Now introduction. We know that light is a form of energy which produce the sensation of sight in our eyes. We call special objects source of light. Some of these are natural and provide light energy to organism. The most prominent of these, of course, the sun. सबसे ज्यादा जो हमें रोशनी मिलती है वो किससे मिलती है? सन से. The night sky has million of stars which are again natural source of light. क्या है हमारे? Stars natural हैं. They appear feeble only because they are very far away from us. An insect known as जुगनू, जिसको हम फायर फ्लाई बोलते हैं, जुगनू जो रात में चमकते हैं, also a natural source of life. Mankind has no been able to develop a number of man-made artificial sources of light. We have wide range of sources of light. The electric lamp, burning candle, and kerosene lamp are common artificial source of light. Now we also CFLs यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, जो व्हाइट कलर के होते हैं ना, CFL जिसे बोलते हैं. आउट ऑफ द सेम लाइट इज एन इलेक्ट्रिक लैम्प बट कंज्यूम approximately 1/5 of energy consumed by later. People are likely to use more and more of आजकल लोग बल्ब्स का यूज नहीं करते. सब लोग जो है वो मोस्टली किसका यूज करते हैं? CFLs का यूज करते हैं, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिक पावर कम खींचते हैं और इन्हें ज्यादा बोल सकते हैं पावर की जरूरत नहीं होती जलने के लिए. व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा जो है सीधी लाइन में चलती है, कभी जिगजैग या टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती. ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन in a uniform transparent medium or vacuum. This is mode of propagation of light called rectilinear propagation. Rectilinear propagation of light explains a lot of phenomena associated with light. One such phenomena is formation of shadow. परछाई किस तरह से बनती है? You have studied about in class 6. क्लास 6 में आपने शैडो या परछाइयों के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरह से फॉर्म होती है. There are many instances in everyday life where we come across rectilinear propagation of light. Can we see your friend, he or she, hiding behind a chair? You cannot see him because the light travels from your friend to you travels in straight line and it is blocked. कोई चीज, कोई भी इंसान किसी चेयर के पीछे छुप गया है तो आप बोल सकते हैं कि वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वहां पे प्रॉपर लाइट नहीं पहुंच पा रही है. It would have gone around the chair and you would have been able to see. और जब आप उसको पीछे से चेयर के जाके देखते हैं तो वो आपको दिखना शुरू हो जाता है क्योंकि लाइट की फॉर्मेशन हो जाती है. Let us consider one or more activity. Verify a rectilinear propagation of light. Make an arrangement as shown in the figure. देखिए लाइट जो है सीधी लाइन में ट्रेवल करती है. टेक 3 स्क्वायर पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ सेम साइज. सेम साइज के कार्डबोर्ड ले लीजिए, उनको सेम साइज पे होल्ड करिए. ठीक है. अब आपने क्या किया? यहाँ पे होल्ड कर दिए तीनों पे, तीनों सेम जगह पर. फिर आप इसे, और यहाँ पे आपने कैंडल जला दी. यहाँ से आपने आई से देखा तीनों होल एक ही जगह पे थे तो आपको ये कैंडल की जो फ्लेम है वो नजर आ रही है. ठीक है. फिर आपने क्या किया? इस कैंडल को यहाँ से हटा दिया और इन होल को अंदर एक पाइप डालकर देखी कि वो सीधे हैं या नहीं.
The flame of candle is look at same height on whole cardboard. Look from cardboard see, you will notice the flame is visible. If you are not able to see the flame, adjust two cardboard B and C such a way. अब इनमें से भी कोई भी कार्डबोर्ड आप इसको बड़ा कर दें या होल यहाँ कर दें, तो क्या आपको ये फ्लेम दिखाई देगी? नहीं, क्योंकि लाइट तो सीधी उसमें ऐसा तो नहीं है कि आपने होल यहाँ कर दिया, कार्डबोर्ड को बड़ा कर दिया तो लाइट यूं जाके यूं आ जाएगी और आपको यहाँ दिखाई देगी। नहीं, लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर इन कार्डबोर्ड का साइज और होल सेम जगह होंगे तभी आप इस कैंडल की फ्लेम को इजीली क्या होंगे, देख पाएंगे। फाइंड द फ्लेम इज नो लॉन्गर विजिबल फ्रॉम फोर कार्डबोर्ड सी वाई। अब इनमें से एक को भी आप हिला दो तो क्या आपको फ्लेम नजर आएगी? नहीं। इनमें से कोई भी एक कार्डबोर्ड हिल गया, होल ऊपर नीचे हो गया तो आपको जो फ्लेम है कैंडल की वो नजर नहीं आएगी। इससे क्या प्रूफ होता है कि जो हमारी लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। Thus the light passing through the hole. Luminous and illuminated object. Luminous यानी जो हमें रोशनी देते हैं। The sun, a lighted candle and an electric bulb and burning lamp produce light. These are luminous objects. जो हमें रोशनी देते हैं वो क्या होते हैं? Luminous object. अब देखिए ये क्या है, कितना अच्छा सा एक बोल सकते हैं हम महल टाइप का है, पैलेस है जो कितना अच्छा ग्लो कर रहा है बल्ब से। दिस पेज इज एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड सो इज इन योर पाम। अब देखिए ऑब्जर्व दी स्पेक्ट्रम, प्रिज्म जिसे बोलते हैं। किसी ने देखा है कभी कोई इसे धूप में लेके वो लाइट पार कराए तो इससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी ना वो हमारी क्या होगी, रेनबो कलर्स होंगे यानी विबग्योर। वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड यानी 7 कलर जो है वो हमारे पास। प्लेस अ क्लियर ग्लास प्रिज्म एज शोन, प्रोजेक्ट अ शार्प बीम ऑफ लाइट। You could take help your teacher to adult. You will see light passes through a prism come out as colored band. एक रंगीन बैंड की तरह आपने एक प्रिज्म लिया और उस पर एक स्ट्रेट लाइन से क्या किया, प्रिज्म के ऊपर लाइट को क्रॉस किया और जो अगले साइड से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो क्या होगी, एक कलरफुल बैंड होगी। व्हाइट लाइट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रेज ऑफ 7 कलर्स। जो हमारी लाइट है वो 7 रंगों से मिलके बनी है। द रेज ऑफ डिफरेंट कलर्स इन ईच स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट आर अरेंज इन अ डेफिनेट मैनर। द ऑर्डर ऑफ कलर्स दैट यू रीड अबाउट इन रेनबो इज violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. विबग्योर, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, क्या है ये हमारे 7 अलग अलग रंगों के नाम। स्विच ऑन ट्यूब लाइट्स ऑब्टेन अ कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी। अब आपने कई बार सीडी को देखा है, सीडी आप निकालते हैं तो उसको जब ऐसे ऐसे हिलाते हैं उस पर बहुत सारे रंग रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। And sit in a place where the tube light behind hold the compact disc in a such way that is wire table surface in facing the light. Move the CD and observe the color. CD को आप रोशनी में ले जाइए, अंधेरे में नहीं, आप रोशनी में ले जाइए सनलाइट में, फिर उसको इस तरह से मूव करिए, आप देखेंगे सीडी के ऊपर अलग अलग कलर्स रिफ्लेक्ट होंगे। When do you see things? आप चीजें कैसे देख सकते हैं? On way to change the direction of light is let is fall on shiny surface. For example, the shining stainless steel plate or shining steel spoon can change the light direction. The surface of water can also act like a mirror. पानी जो है वो भी क्या करता है, एक मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करता है। Any polished or shiny surface, वो क्या करेगी, कोई भी पॉलिश सरफेस है या शाइनी चमकीली वो है सतह, वो किसकी तरह रिफ्लेक्ट करेगी, एक शीशे की तरह। You will have learned in class 6 in mirror changes of direction. The changes of direction by mirror is reflection of light. लाइट जितनी स्पीड से आती है उतनी ही स्पीड से वापस चली जाती है। Can you recall activity in which you got light of torch reflect from mirror? जितनी तेजी से आएगी उतनी ही तेजी से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। Take a torch, cover the glass with the chart paper which has 3 slits as shown in figure. Spread sheet of chart on smooth wooden board. देखिए क्या किया, फिक्स अ प्लेन पेपर स्ट्रिप, क्या किया, एक प्लेन पेपर पर आपने एक मिरर को रख दिया, टॉर्च से इस पर लाइट मारी और आपने देखा कि वो सामने वाली साइड क्या हो रही है,
जैसे आ रही है वैसे ही उस पर रिफ्लेक्ट हो रही है। जितनी स्पीड से आएगी उतनी स्पीड से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन से आई और स्ट्रेट लाइन से रिफ्लेक्ट हो गई। डू थिंक रिफ्लेक्ट लाइट इन अ सिमिलर मैनर। अब ये कैसे पता चलेगा जितनी स्पीड से आई है या जितनी आई है उतनी ही रिफ्लेक्ट हो रही है? ऐसा भी तो हो सकता है कम आ रही है और ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, और ज्यादा आ रही है कम रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ भी हो सकता है। पर ऐसा नहीं होता, जितनी आती है उतनी ही रिफ्लेक्ट होती है। द लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सर्फ। A reflection can be regular or diffuse। जो रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर भी हो सकता है, एक सा भी हो सकता है, या गड़बड़ भी हो सकता है। टू ऑब्जर्व द रिफ्लेक्शन, take a piece of cardboard and a steel plate on a smooth surface। होल्ड अ प्लेट इन डायरेक्ट ऑफ सनलाइट। आपने स्टील की एक प्लेट ली और सनलाइट के डायरेक्शन में उसको पकड़ लिया। अब क्या करेगी? लाइट जब प्लेट पे पड़ेगी और प्लेट से आके वो कहाँ होगी? आपके दीवार पर रिफ्लेक्ट होगी। नाउ डू एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड। द कार्डबोर्ड डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। अब ये तो आपका शाइनी ऑब्जेक्ट था तो इसने क्या किया? लाइट को रिफ्लेक्ट किया। लेकिन जो आपका कार्डबोर्ड है उसकी सरफेस जो वो क्या है? शाइनी है। तो शाइनी नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा? आपकी लाइट जो है वो यहीं आकर रुक जाएगी। कार्डबोर्ड आपका शाइनी नहीं है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। यानी एक लाइट की जो चमक है, जो रिफ्लेक्शन है, वो किसकी? उसकी सरफेस पे डिपेंड करता है कि सरफेस किस तरह का है। अगर शाइनी सरफेस होगा, पॉलिश सरफेस होगा, चमकीला होगा, तो लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यू मस्ट हैव ऑफ्टन थ्रो अ रबर बॉल ऑन अ वॉल and caught them in bounced back. Most of the time you able to judge accurately where the ball would return। कई बार आप बॉल को फेंकते हैं, टप्पा मारते हैं और आप उसको एकदम से कैच कर लेते हैं, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर लेते हैं कि जहां हमने मारा वो किस ओर को हमारे हाथ में आई। और कई बार हम अच्छे से कैच नहीं कर पाते। When light is strike in a smooth surface like that steel plate or plane mirror, it is reflected or definite manner। When a light strike rough surface, तो क्या होगा? अगर हम हथेली पे लाइट रिफ्लेक्ट करें तो नहीं आएगी। It behaves like a ball in thrown in a rough wall। From a rough surface, a ball would bounce back any direction। यानी आप किसी रफ सरफेस पे लाइट डालेंगे तो वो किसी भी दिशा में रिफ्लेक्ट हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में। रेगुलर एंड इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। अब एक लाइट का रिफ्लेक्ट होना किस पर डिपेंड करता है? उसके सरफेस के नेचर पे, कि जो जिस सरफेस से वो रिफ्लेक्ट हो रही है वो कैसा है, चमकीला है या नॉर्मल है। टू टाइप्स की होती है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन, irregular or diffuse reflection। When the light reflects surface on polished smooth, तो क्या होगा आपका? Regular reflection। और वहीं we can say that the reflection from rough surface is irregular। अब जब आप किसी रफ सरफेस पे डालेंगे तो क्या होगा हमारा? irregular और diffuse reflection। What is image? इमेज क्या होती है? अगर हम शीशे में अपने आप को देखें तो हमारी इमेज शीशे में बन रही होती है ना, हमारी परछाई। When you look into the mirror, you will see reflection of yourself। अपने आप को आप शीशे में देखते हैं। It is called image। An image is an actual representation of an object। किसी चीज का सेम वास्तविक रूप क्या कहलाता है? उसकी इमेज कहलाती है। The kind of image formed depends on reflecting surface। A rough surface does not form any image। अब जैसे ऊपर था, रफ सरफेस पे अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे लाइट तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। वैसा ही अगर आप रफ सरफेस पे इमेज देखना शुरू करेंगे और जो लाइट रेज है वो कहीं भी स्कैटर्ड हो सकती हैं। An image formed by smooth surface of mirror unless it can be produced। और वहीं आप अपने आप को शीशे में देखेंगे तो क्या होगी? आपके जो लेंस है, जो मिरर इमेज है, वो अच्छे से रिफ्लेक्ट होगी। Devices such as camera, telescope, microscope, the human eyes, eyes of other animals, and surface of water also produce images। अब देखिए ये एक पैलेस है, इसका जो सारा रिफ्लेक्शन है वो पानी में भी कितना सुंदर आ रहा है, क्योंकि पानी जो बोल सकते हैं पॉलिश्ड है या इसकी सतह जो है वो चमकीली है, तो इसने लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्शन ऑफ द विक्टोरियल मेमोरियल। हाउ इज एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर? अब प्लेन मिरर पे एक इमेज कैसे बनती है?
To find the position of an image by a plane mirror performed by following activity. देखिए, ये आपकी आई है, ये आपका मिरर हो गया। आपने जब अपनी आंख से देखा, तो जब आपकी यहाँ पे सनलाइट पड़ी या रोशनी पड़ी, यहाँ से ये जो लाइट गई, मैंने बोला था स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बिल्कुल जी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। फिर जितनी ही स्पीड से आ रही है उतनी ही स्पीड से रिफ्लेक्ट करेगी। अब यहाँ से आई, यहाँ से टकराई हमारे मिरर से और वापस हमारी आई पे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। इस बॉय ने अपने आप को रोशनी में, अंधेरे में ये इसका इमेज दिखाई देगी, इसकी परछाई दिखाई देगी नहीं। जैसे ही लाइट इसके यहाँ मिरर पे पास थ्रू होगी, वैसे ही इसे उतना ही अपनी मिरर जो है वो दिखाई देगी। इमेज इज फार बिहाइंड एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। इमेज जितनी ही दूर होती है, जो उसका ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है, इमेज उतनी ही क्या होती है, पास होती है। लेटरल इन्वर्जन यानी बिल्कुल सेम, आप अपने आप को देख रहे हैं तो आप जैसे हैं वैसे ही आप मिरर में दिखाई दे रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरी डे यू विल सी इमेज इन द मिरर। रोज ही आप देखते हैं अपने आप को चेहरे में। यू हैव ऑब्जर्व दैट इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। द इमेज is one of the size of object. How is image formed? There is an apple in front of plane mirror in a lighted room. The light that illuminates the apple gets reflected. जब एप्पल के ऊपर लाइट पड़ेगी तभी तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्ट होगा। Each of affected rays of light extend backward insert at point of mirror where the image is formed. देखिए, लाइट रेज इस पे पड़ी, ये मिरर है, सामने उसकी सेम रेज रिफ्लेक्ट होने लगी। जैसे जैसे इधर से आ रही हैं वैसे ही उतनी सनलाइट में क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। रिफ्लेक्ट रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, जो पड़ रही हैं वैसे ही वापस जा रही हैं। तो हमें जो पूरा एप्पल है वो क्या दिखाई दे रहा है, सेम वैसा ही मिरर में शो हो रहा है। फिक्स द टाइप ऑफ प्लेन मिरर इन अ वर्टिकल पोजीशन with the help of plasticine. Alternately, you can place few book behind the plane mirror so as we give support light candle placed on in the front of mirror stand. You will notice the image of candle formed. अगर आप कैंडल जलाकर यहाँ शीशा रखें तो ये इमेज आपके यहाँ इसमें मिरर में रिफ्लेक्ट होगी। मैं खड़ी हो जाऊं तो मेरी इमेज मिरर में रिफ्लेक्ट होगी। रियल और वर्चुअल इमेज, रियल तो हमारी हो गई और वर्चुअल जो होती है एक तरह से बनावटी। लुक एट योर ओन इमेज इन अ प्लेन मिरर, इट अपीयर्स टू बी इनसाइड द मिरर। अब आप जब अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप शीशे के अंदर है, सेम है आपके जैसा ही कोई शीशे के अंदर है। इट अपीयर्स टू बी इनसाइड द मिरर, लाइट कैन रेज ट्रांसमिटेड थ्रू द मिरर एंड गो बियॉन्ड इट। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द मिरर इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट है मिरर, but the image we see in the mirror appears to be distance inside equal the distance at which object placed outside the mirror. अब मिरर तो ओपेक है, पारदर्शी नहीं है, तो हम अपने आप को कैसे देख पा रहे हैं इधर से उधर? वो इसलिए कि जितनी दूरी पे हम खड़े हैं उतनी ही दूरी पे हमारी जो इमेज है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। दिस इज वर्चुअल इमेज। ये क्या हो गई हमारी वर्चुअल इमेज। अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय intersection of light rays when produced behind the mirror, not by their actual inversion. यानी जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, जो हमारी इमेज बनती है, वो रियल इमेज नहीं होती, वो वर्चुअल होती है या आभासी या बनावटी होती है। इट इज ऑफ द सेम साइज दैट द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल। It can be taken on the screen. It cannot be taken on the screen. The rays of light after reflection meet at point. The rays of light after reflection or reflection appear, meet at a point. It always inverted, it always erect. ये inverted होती है, बिल्कुल सीधी होगी, और ये होगी आपकी erect. Your hand accustomed to writing a certain way, but your eyes see a different image. Because the mirror reverses the image, that is why there is a conflict between eye and hand. हम पलके झपकते हैं। अब मैं अपने हाथ से कुछ लिख रही हूँ, कुछ भी मैं ये बना रही हूँ। अब मेरी आईज इसको देख रही हैं, क्या हो रही है,
लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और मुझे ये दिखाई दे रहा है. दैट इज वाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर आईज एंड हैंड. दिस मेक्स द टास्क ऑफ राइटिंग डिफिकल्ट. Draw a simple shape like triangle in a notebook. Then draw a simple shape around it. Place the page in front of mirror and only by looking the shape in mirror, try to draw a line. Way to escape between two triangles could you complete? The word ambulance on a ambulance is written on mirror writing. मिरर इमेज. अब मैं इसके यहाँ एक मिरर दिखाई दूं तो ये फिलहाल तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं इसको मिरर में देखूंगी, शीशे में देखूंगी, तो ये एम्बुलेंस मुझे सीधा दिखाई देगा. देखिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा है. और जब मैंने साइड मिरर से इसको देखा अपनी अपने व्हीकल से, पीछे से कोई एम्बुलेंस आ रही है, तो मुझे ये एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा और मैं फटाफट इसके लिए रास्ता छोड़ दूंगी. Leonardo da Vinci, who is known for his painting and contribution in the field of science, engineering, mathematics, and astronomy, wrote most of the personal notes mirror text, in written as appears on the plain mirror. He may have done this protect his ideas from being stolen. ये कौन से लियोनार्डो दा विंची थी, उन्होंने जो बुक लिखते थे ना वो मिरर इमेज में लिखते थे, यानी उल्टे लिखते थे कि जब तक आप उसको मिरर में नहीं देखेंगे आपको उनके वर्ड सीधे समझ नहीं आएंगे. वो इसलिए कि कोई भी उनके आइडियाज को चुरा ना ले, क्योंकि हर किसी को समझ में नहीं आएगा कि वो जो बुक है मिरर इमेज में लिखी है, कि जब तक आप शीशे रख के उसको सीधा नहीं देखेंगे आपको वो अल्फाबेट सीधे दिखाई नहीं देंगे. द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर is same distance behind the mirror as object is in front of it. Uses of plane mirrors. The regular reflection caused by plane mirrors can be used to record picture for television show. A large plane mirror hung above the table at angle 45 degree to surface of table allows a television camera to record what is on the table. Such adjustment of mirror are useful recording science quiz and copy demonstration for television program. आप देखिए एक डेंटिस्ट को जब आपके टीथ देखने होते हैं तो वो एक छोटा सा ये वाला एक बोल सकते हैं रॉड से एक छोटा सा मिरर अटैच होता है, वो आपके माउथ में डालता है और यहाँ आपकी जो इस कहीं पे भी लगाए उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो आपके टीथ की किसमें आने लगती है, इस मिरर में. The regular reflection caused by plane's mirror is also put to use in making of periscope to observe objects which are different level of eye. Plane mirror are used in a microscope to illuminate the object you want to observe. प्लेन मिरर आर यूज्ड इन मैनी अदर डिवाइसेस. जो प्लेन मिरर्स हैं वो हमारे और काफी सारी अलग अलग डिवाइसेस में यूज होते हैं. जैसे देखिए अ डेंटिस्ट यूज अ प्लेन मिरर टू लुक द इनएसेसिबल टीथ, यानी ऐसे दांत जो इजीली दिखाई नहीं दे सकते, वो जो डेंटिस्ट है वो किससे देखते हैं, हमारे प्लेन मिरर से. द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर ऑन द सेम साइज. प्लेन मिरर है तो क्या होगी, जो ऑब्जेक्ट है वो सेम साइज का दिखाई देगा. व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, थोड़े से बोल सकते हैं थोड़े से घूमे हुए. Spherical mirrors have curved surface. They are also called curved mirrors. Plain mirrors are flat. प्लेन वाले तो सीधे होंगे, ये वाले कैसे होंगे, थोड़े से कर्व्ड से होंगे. There are two types of spherical mirrors. दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. पहला है हमारा कॉनकेव मिरर. A concave mirror is a spherical mirror whose inner curved surface is reflected surface. ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस, जो हमारा बाहर की ओर है, और जो हमारा अंदर की ओर है वो हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस. आउटर सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट, जो इसकी आउटर सरफेस है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी. और आउटर सरफेस मिरर, और इसकी जो आउटर सरफेस है वो क्या होगी, मिरर होगी. ये देखिए हमारा एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसकी जो ये है सरफेस वो है कॉन्वेक्स सरफेस. To observe the image in mirror. देखिए, take a new shiny stainless spoon. A spoon has two smooth surface. In the inner smooth surface behaves like convex mirror. Bring it close to your face and then move it away. Observe the image formed in inner convex surface of a spoon. What kind of image does form? Are they like image formed? Turn the spoon, study the image formed. पहले आप कॉनकेव की साइड से देखेंगे तो इमेज क्या होगी, सीधी दिखाई देगी, और कॉन्वेक्स की साइड से
आपको उल्टी इमेज बनेगी। आर द इमेजेस स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, आर द इमेजेस ऑलवेज अपराइट, क्या जो आपकी इमेज है वो छोटी दिखाई दे रही है। अब आते हैं हमारे कॉन्केव मिरर कैन बी रियल इमेज। You know that the image formed by a plane mirror is a virtual image. Cannot be captured on screen. The image formed by concave mirror can be real image. क्या है? रियल इमेज जो कॉन्केव लेंस से हमें मिल रही है। रियल इमेज कैन बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन, और रियल इमेज को आप कैप्चर्ड कर सकते हैं या बोल सकते हैं फोटो खींच सकते हैं, वर्चुअल इमेज की नहीं खींच सकते। See, to see imagine to concave mirror. Stand as far as possible from an open window inside room. Hold a concave mirror in such a way that it faces the window. Reflect the light falling on the mirror onto white sheet of paper. Adjust the distance between mirror and the paper to obtain a clear image on paper. How does a concave mirror from real image? Study the diagram. The real image of lighted candle formed by concave mirror can be captured on a wall of the dark room. देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ लाइट पड़ी, रेज रिफ्रैक्ट बाय मिरर, से हमारी रेज रिफ्रैक्ट हुई, ये हमारा क्या है? कॉन्केव मिरर। फिर क्या हुआ? रेज जब रिफ्रैक्ट हुई मिरर से, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ मिरर, जो हमारी इमेज है वो क्या होगी? हमारी उल्टी फॉर्म होगी, उल्टी इमेज बनेगी। रेज रिफ्लेक्टेड बाय मिरर एन ऑब्जेक्ट आउटसाइड द विंडो। अब क्या किया? जब हमने शीशे पे रोशनी डाली तो जो हमारी इमेज है वो फॉर्म हो गई, लेकिन कैसी? उल्टी। लाइट्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम कॉन्केव मिरर फ्रॉम अ रियल इमेज। जैसी इमेज यहाँ थी वैसी ही सेम इमेज आपकी यहाँ बनी, तो क्या होगी? हमारी कॉन्केव लेंस से जो इमेज बनती है वो ऑलवेज रियल इमेज होती है। The image produced by a concave mirror is formed by reflected light. That is why, by placing a screen in a path of reflected light, the image can be captured on the screen. Two concave mirrors form only real image. Concave mirror also from virtual image when the candle is close to safely warning objects in the mirror are a virtual image is formed the closer than appears. Image cannot be captured on screen. Uses of concave mirror. देखिए, if you hold a concave mirror in the sunlight and obtain the reflection on a paper, will obtain a sharp spot on a light of paper. This is because a concave mirror concentrates light. That is why concave mirrors are used to torch or highlights to motor vehicles. तो कॉन्केव लेंस का यूज होता है वो किस लिए होता है? टॉर्च के लिए होता है, या चीजों को बड़ी रोशनी को बढ़ाकर या चमकाकर दिखाने के लिए होता है, ताकि वो अच्छे से हमें क्लियर दिखाई दे। दे आर ऑल्सो यूज इन मेकिंग सोलर हीटिंग पैनल्स। जितना ज्यादा पावर को कैच करेंगे, अपने ओर एब्जॉर्ब करेंगे, उतनी ज्यादा हीट होगी। These panels generate great amount of heat, concentrating heat waves. Concave mirror are used in torch, headlights of motor vehicles and in solar panels. Convex mirror. In convex mirror, the outer curved surface reflective, the image formed on the convex surface smooth. Its upright सीधी होगी, is smaller than object, जो आपका ऑब्जेक्ट है ओरिजिनल उससे छोटी होगी, कर्व्स आ वाइडर एरिया और ज्यादा एरिया कवर करेगी। Convex mirror makes things appear smaller, upright, and cover wider field. It is used as the side mirror in motor vehicles. मोटर व्हीकल्स में साइड पे लगी होती है ना, अगर कितनी बड़ी कार होती है और हमारे साइड मिरर में कितनी छोटी सी दिखाई देती है, लेकिन पूरी दिखाई देती है, तो क्या हो गया? अपराइट होगी, सीधी होगी, स्मॉलर होगी और ज्यादा एरिया क्या करेगी? कवर करेगी। The safety warning objects in the mirror are closer they appear. Observe the rear view. अभी आप खुद देखेंगे, कई बार आप ड्राइव करने जाएं तो आप इनको देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो इमेज है वो किस तरह से बन रही है। When you look into convex mirror, you will see an image. It is not possible to project this image on a sheet of paper. This is because image is virtual. अब इसको आप शीट ऑफ पेपर पे नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारी क्या है? वर्चुअल इमेज है। It is not formed by reflecting rays of light.
It can be projected on a screen such as paper. A convex mirror does not form a real image, it is only from virtual image. Study in diagram, you will learn the object produced by convex mirror is not formed by actual reflected by rays. Such an image cannot be captured on screen. This beautiful mirror is sculptured by an Indian born British artist Anish Kapoor as both convex and concave reflect surface. It is known as Cloud Gate and is located in the Millennium Park in Chicago City of United States of America. देखिए, कैन यू आइडेंटिफाई द टू सरफेस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये साइड्स पर देखिए और ये बीच में देखिए और ये वाली देखिए, ये क्या है, हमारी रियल इमेज भी बन रही है और वर्चुअल भी। अब आते हैं हमारे लेंस। लेंसेज आर मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं ताकि हम इजीली उनसे आर पार देख सके। दैट इज वे लाइट पास थ्रू अ लेंस। अ लेंस हैज टू सरफेस। अ लेंस कैन बी कॉन्वेक्स और कॉन्केव। जो हमारे लेंस है वो भी क्या होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। पहले आते हैं कॉन्वेक्स लेंस। मोस्ट ऑफ यू हैव सीन मैग्नीफाइंग लेंस। जो बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं ना, वो क्या है, हमारे कॉन्वेक्स लेंस। The image can be captured on screen. It is real. It is formed by actual rays of light that pass through the lens. Thus, a convex lens from only real image. No, it is forms virtual image like only other virtual image. The one formed by convex lens too cannot be captured on screen. A virtual image of light candle shown in the figure. देखिए, try reading these lines with the help of magnifying glass. By placing the lens certain distance from page, you will able to obtain large images. With a convex lens, we can obtain a magnifying image of object. A convex lens therefore is used for microscope. चीजों को बड़ा दिखाने के लिए कैमरा के लेंस पे यूज होता है, फोकस करता है तो वो चीजें बड़ी दिखाई देती हैं। देखिए, ये हमारा बाई कॉन्वेक्स हो गया दोनों साइड से, ये प्लानो कॉन्वेक्स हो गया, एक साइड से फ्लैट एक साइड से कर्व। ये हमारा कॉन्वेक्स मिनिमाइज हो गया, बिल्कुल ही पतला दोनों साइड से मुड़ा हुआ। ये बाई कॉनकेव हो गया, अंदर की ओर दोनों साइड से। ये प्लानो कॉनकेव हो गया, एक साइड से सीधा एक साइड से धसा हुआ। और ये कॉन्वेक्स मिनिसस यानी दोनों साइड से ही मुड़ा हुआ। पीपल हु आर नॉट एबल टू सी थिंग्स विच नियर clearly and read have used spectacle made convex lens. दूर की चीजें जिन्हें दिखाई नहीं देती उन्हें कौन से कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगता है। इफ यू मूव द लेंस टू रीडिंग ग्लास न्यूज़पेपर, यू विल सी दैट मैग्नीफाइंग ग्लास एनलार्ज द लेटर। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, जो हमारा ये होता है ना, क्या करता है, चीजों को बड़ा करके हमें दिखाता है तो हम इजीली उससे पढ़ पाते हैं। कॉन्केव लेंस कन्वर्जेस लाइट। Light falling on convex lens coverage. This means the lens bends light towards. The effect can be observed by capturing sunlight on a convex lens and focusing on paper. At the particular point, the light appears in a small spot on paper. This is because convex lens contracts light, यानी लाइट की रोशनी को क्या कर देती है, सिकोड़ कर एक पॉइंट पे लाके छोड़ देती है। कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्ज लाइट। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है, किस तरह। इन अ कॉन्वेक्स लेंस बोथ द सरफेस आर कॉन्वेक्स। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल। इट कैनॉट बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन। अ कॉन्वेक्स लेंस डज नॉट फॉर्म अ रियल इमेज। अ कॉन्वेक्स लेंस diverges light. This means it bends light outwards. This is why a convex lens called diverging lens. These types of lens are used for making spectacles for people cannot see distance. यानी सनग्लासेस, वो सनग्लासेस नहीं, हम बोल सकते हैं जिन्हें चश्मा लगता है वो किस लेंस का बनता है, कॉन्वेक्स लेंस का, जिनसे उन्हें दूर की चीजें साफ दिखाई दे सके। देखिए, ये वाला ये वाला लेंस का चश्मा, जिससे क्या होता है, जो इमेज होती है वो अच्छी और क्लियर फॉर्म होती है। नाउ रिकैपिटुलेट एन encyclopedia. Read yourself now. Checkpoint time. Darken the correct option in OMR sheet. A real image formed by convex mirror is formed reflected light. An image formed by convex lens can be only real. An image formed by concave lens is always virtual.
Now, question B, filling in the blank. All dash bodies are source of light, luminous. Lights travel in a straight line. The sun, the lighted candle, etc. are luminous objects. Now 4. When light rays fall on polished surface, the reflection is regular and rough. On rough surface, the reflection is irregular. An image formed by concave is a real image cannot be obtained on a screen. Now question C, tick right to correct option and cross the incorrect. All objects around us provide light. False. A collection of rays of light is called beam. True. There are two laws of reflection. True. Newton provides that the seven colors come from white line is not compass. True. Image formed by a convex mirror is always virtual and erect diminished. It is also true. Now your chapter is completed. I hope आपको समझ में आया होगा. Read this chapter again and rest of the exercise. Do it yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.